Good evening, students. Today we will discuss a topic of 8th standard chapter number 7 percentage. In this chapter we will discuss about the terms percent and percentage. We will also learn conversion of percentage into fraction and decimal form and from fraction and decimal form into percentage. इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को चेंज करेंगे परसेंटेज में, परसेंटेज को चेंज करेंगे फ्रैक्शन में. परसेंटेज मीन्स हाउ मच आउट ऑफ 100. यहाँ परसेंटेज का मतलब क्या होगा, 100 में से कितना. फॉर एग्जाम्पल 25% मीन्स 25 आउट ऑफ 100. 100 में से 25. Percentage is a fraction with denominator 100. The words percent and percentage are used in the same meaning. So student, in this exercise we will learn two types of question. First, fraction से percentage और percentage से fraction. Then question number first, convert the following percentage as fraction. Question number first में percentage given है, हमने किस, that is part number first 276 percentage we change into fraction. अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो डिवाइड करेंगे 100 से, अगर परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट नंबर फर्स्ट है 276% इक्वल टू 276 डिवाइडेड बाय 100. Okay, now we cancel out this. Then 50 2 से cancel किया, 2 1 2 3 and 2 8. Again cancel out by 2 25 2 6 2 9 and this equal to 69 by 25. This is a fraction. Part number third 0.005% also divided by 100. Then अगर हमने इसको किस में चेंज करना, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, तो क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 100. 0.005 डिवाइडेड बाय 100. ओके, हमने तो फ्रैक्शन बनानी है. हम लिखेंगे 5/100 एज इट इज एंड देयर इज 3 डिजिट आफ्टर डेसिमल, देन टोटल 1000. ओके, 5152 and 0 and this equal to 1/2 1 2 3 4 4 zeros. Okay, 20,000. 1/20,000. This is a fraction. Next is question number second. Convert the following fraction as percentage. यहाँ फ्रैक्शन गिवन है, हमने इसको चेंज करना है किसमें, परसेंटेज में. जब भी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से. 4/5. This is a fraction and multiply 100. 5152 and 20 multiply 4, that is 80 and this equal to 80%. 4/5 is a fraction and 80%, this equal to 80%. And next is 8/25, same as it is, multiply 100. 25 1 25 4, 8 4 ja 32, this equal to 32%. Next is question number third. Convert the following as decimal, then convert the decimal as percentage. First we change the given fraction into decimal. After that decimal change in a percentage. Question is 5/60. First we change into decimal. We divide 5/16. हम किससे डिवाइड करेंगे, 5 को 16 से डिवाइड करेंगे एज ए डिवीजन मेथड से, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 0.3. ये हमारा आया 0. अगर हम इसको पूरा आगे भी डिवाइड करते हैं तो ये हमारा आगे भी जाएगा 0.3. नेक्स्ट इज 1 2 5. 5/16 इक्वल टू 0.3125. जो 5/16 है वो डेसिमल में चेंज किया, वो क्या है हमारा आंसर, 0.3125. अभी इस डेसिमल को किस में चेंज करना, परसेंटेज में, और जब भी परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से. एंड दिस इक्वल टू 0.3125 मल्टीप्लाई 100. अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये बना 3125 टोटल, और टोटल डिजिट आफ्टर डेसिमल 4, देन 1 2 3 4, that is equal to 31.25 and this is a percentage. Okay, next is question number 4. Convert the following ratio as percentage. हमने रेशियो को किस में चेंज करना, परसेंटेज में चेंज करना. रेशियो गिवन है, then we write
18/25 अगर परसेंटेज में चेंज करना है मल्टीप्लाई बाय 100. 25 1, 25 4, 18 4 जा 72 and that is equal to 72%. Same next part 21/75 multiply by 100. 25 से करेंगे 3, 25 4, 3 1 3 7, 7 4 जा 28 and that is equal to 28%. Next is question number 5. First part, evaluate the following. 17% of rupees 50. 50 rupees का हमने क्या फाइंड आउट करना? 17%. 17% को हम लिखेंगे 17/100. ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई और किसका? 50 रुपीज का मल्टीप्लाई 50, 51, 52 एंड दैट इज इक्वल टू 17/2. Okay, that is equal to 17/2 and this equal to 8.5. 8.5 means 8.5 rupees. Okay, हम 8.5 या 8.50 rupees ऐसे भी लिख सकते हैं. 8.50 means 8 rupees 50 पैसे. And next part is part number C. 0.7% of 350. That is 0.7/100 multiply 350. And we can write this 7/100 multiply 350 and 4 decimal, that is 10. Okay, 0 to 0 cancel. This equal to, first we multiply 7 with 35. 7 5 ja 35, then 5, 7 3 ja 21 and 3 24 divided by 100 and we can write this 24.5. Okay, this equal to 24.5. Next is sorry for there is 100, then we write is this equal to 2.45. Next is part number second part. 45% of 140 minus 35% of 160 plus 26% of 150. First 45% means 45/100. Of means multiply 140 minus 35/100. Of means multiply 160 plus 26/100 multiply 150. Okay, then 0 to 0 cancel. First we multiply 45 with 40 and this equal to 6, 306 30 divided by 10 cancel and this equal to 63 minus 0 to 0 cancel. Next is 35 multiply with 6, this equal to 560 divided by 10 and 0 cancel minus 56 again 26, 0 to 0 cancel. Next 26 multiply with 50 and this equal to 390 divided by 10 then plus 39. 63 plus 39 minus 56. We solve this after this calculation. This equal to 46. Okay, then answer of this 46. Next is question number 6. Question number 6. What percent is 20 of 80? 20 80 का कितने परसेंट है? दैट मीन्स 20 किसका बताना हमने? 80 का. और कितने परसेंट फाइंड आउट करने के क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100. 21 4 4 1 देन 25. दिस इक्वल टू 25%. 20 इज 25% ऑफ 80. जो 20 है वो 80 का 25% है. नेक्स्ट इज पार्ट नंबर सेकेंड. What percent of 25 kg is 32.5 kg? यहाँ पूछा गया है 25 kg का कितने परसेंट 32.5 है. इसका मतलब ये है 25 kg का कितने परसेंट. मान लिया x परसेंट किसके इक्वल है? 32.5. What percent of 25 kg is 32.5 kg? 25% का जो 25 का जो x परसेंट है वो किसके इक्वल है? 32.5. We find the value of x. 25 multiply x divided by 100. For percentage we divided by 100 equal to 32.5 and x equal to 32.5 multiply with 100 and divided by 25. 25 1, 25 4. 32.5 multiply with 4.
After calculation, this equal to 130. Multiply of 32.5 with 4, this equal to 130. And find what percent, that is x percent equal to 130%. Okay. Next is question number 7. Find the number if 8/3% of a number is 12.50. हमने वो नंबर फाइंड आउट करना है जिसका इतने परसेंट किसके इक्वल है, 12.50 के इक्वल है. लेट द नंबर इक्वल टू x. मान लिया वो नंबर क्या है, x है. देन x का 8/3% इक्वल टू 12.50. वी फाइंड द वैल्यू ऑफ x. देन x इंटू 8/3 24 and 125. 25/3 4% divided by 100. This equal to 12.50. 25 1 25 4. X equal to 12.50 multiply with 3 4s 12. Value of x equal to 12.50 multiply with 12. And calculation of this equal to 150. Okay. Then number equal to, जो नंबर गिवन है किसके इक्वल होगा, वो 150 के इक्वल होगा. ओके, 150. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. राम सेव्स 46% ऑफ हिज मंथली सैलरी. फाइंड हिज सैलरी इफ हिज एक्सपेंडिचर इज 11,178 रुपीज. राम से 46%, जो उसकी मंथली सैलरी है वो उसका कितने परसेंट सेव करता है, 46% सेव करता है. फाइंड हिज सैलरी, हमें उसकी सैलरी फाइंड आउट करनी है. इफ हिज एक्सपेंडिचर, अगर उसका जो खर्च है वो कैसे गिवन है, 11,178. जो एक्सपेंडिचर है वो गिवन है, लेकिन जो सेविंग है वो परसेंटेज में गिवन है. अब जो मंथली सैलरी है उसकी दो ही पार्ट होंगे, या तो सैलरी की सेविंग होगी या फिर उसका एक्सपेंडिचर होगा. अगर सेविंग 46% है, इफ सेविंग इक्वल टू 46%, देन जो खर्च होगा एक्सपेंडिचर होगा वो कितना होगा, 100 माइनस 46, क्योंकि टोटल परसेंटेज कितना होगा अपना, 100% होगा. दैट इज 54% उसका क्या हुआ, खर्च. बट खर्च तो हमारा दे रखा है कितना, 11,178 रुपीज. सो लेट हिज मंथली सैलरी मान ली हमने उसकी x. देन मंथली सैलरी का 54% इक्वल टू 11,178. x मल्टीप्लाई 54 by 100 इक्वल टू this, and x equal to 11,178 multiply 100 and divided by 54. We solve this calculation, and this equal to 20700. 20,700 rupees is his monthly salary. Okay. The next is question number 9. Question number 9. मोहन स्पेंड 47% ऑफ हिज मंथली सैलरी. यहाँ पे उसका खर्च दे रखा है 47% एंड सेव्स 3,710 रुपीज. और इतने रुपए उसकी क्या सेविंग. फाइंड हिज मंथली सैलरी. सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही मंथली सैलरी फाइंड आउट करनी है. लेट हिज मंथली सैलरी इक्वल टू x. मंथली सैलरी क्या मानी उसकी, x है. और जो स्पेंड करता है एक्सपेंडिचर या स्पेंड, जो खर्च है उसका वो कितना दे रखा है, वो दे रखा है 47%. तो जो सेविंग बची है वो कितनी बची हमारी, 100 माइनस 47%, दैट इज 53% उसकी क्या है, सेविंग. बट सेविंग तो रुपीज में गिवन है 3,710. दैट मीन्स मंथली सैलरी का 53% जो सेविंग है वो इक्वल है 3,710 की. दैट इज x मल्टीप्लाई 53 by 100 इक्वल टू 3,710. x इक्वल टू 3710 मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय 53. ओके, नाउ वी सोल्व दिस कैलकुलेशन.
and this equal to 7000, this equal to 7,000 rupees his monthly salary. Okay, next is question number 10. Find total strength of school if 56% of students are boys and number of girls is 264. हमने टोटल स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं, जबकि जो स्ट्रेंथ है वो परसेंटेज में बॉयज की गिवन है, बॉयज इक्वल टू 56% एंड गर्ल्स गिवन 264. जो नंबरिंग है गर्ल्स की वो 264 गिवन है. तो अगर 56% बॉयज हैं तो जो गर्ल्स होंगी वो कितने परसेंट होंगी? 44% गर्ल्स होंगी. लेट है हमने टोटल स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है. लेट है total strength of the school equal to X and number of boys in percentage equal to 56%, then number of girls in percentage equal to 44%, but given number of girls इक्वल टू 264. दैट मीन्स टोटल स्टूडेंट का जो 44% है वो गर्ल्स है, बट गर्ल्स गिवन इक्वल टू 264. देन x मल्टीप्लाई 44 बाई 100 इक्वल टू 264 एंड x इक्वल टू 264 मल्टीप्लाई विद 100 एंड डिवाइडेड बाई 44. नाउ वी सोल्व दिस कैलकुलेशन. After solving this equal to 600, x equal to 600. What is x? X is total strength of the school. Then total students equal to 600 student. Okay, the next question. Question number 12. 3 candidates in a college election received 1,704, 11,454 एंड 7,442 वोट्स. फाइंड. यहाँ पे जो वोट गिवन है वो किसके? 3 कैंडिडेट के वोट गिवन है. फर्स्ट में फाइंड टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल. जितने वोट डले हैं वो वोट फाइंड आउट करने. टोटल नंबर ऑफ वोट. देन फर्स्ट कैंडिडेट है वोट है. इतने जो वोट हैं वो किसके हैं? फर्स्ट कैंडिडेट के. सेकंड कैंडिडेट गोट 11,454 वोट एंड थर्ड कैंडिडेट गोट 17,442 वोट्स. फर्स्ट वी फाइंड टोटल वोट. टोटल वोट इक्वल टू sum of all this. This is equal to total vote 448 to 10, 0 that is 1, 5, 5, 10, 0 that is 1, again 7, 1, 8 and 8 16, 1, 1, 2, 3, 3 and 7, 0, 30,600. Total number of vote equal to 30,600. The next part, this is part number first. Next is what percent of the total vote received by the winning candidate. winning candidate कौन सा? जिसको सबसे ज्यादा वोट मिले. this is winning candidate. third candidate is winning candidate. we find the percentage of the winning candidate. third winning candidate got equal to 17,442 vote. Total vote equal to this. Then percentage equal to total vote got by candidate divided by total. Total equal to 30,600 मल्टीप्लाई विद 100. अगर हमें परसेंटेज फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई 100 से. जिस कैंडिडेट ने जितने वोट लिए हैं वो डिवाइडेड बाय टोटल जितने में से लिए हैं मल्टीप्लाई 100. Then 20 cancel. Now we solve this calculation and this equal to 57%. जो विनिंग कैंडिडेट है उसके कितने परसेंट वोट हुए? हमारे 57% वोट.
Next and last question. Question number 14. In an examination, a candidate scoring 360 marks less by 15 marks to score 75% of maximum marks. एक एग्जाम में एक कैंडिडेट को कितना स्कोर हुआ है, 360 का स्कोर हुआ है, और उसके 15 मार्क्स हैं वो जो कम रह जाते हैं किससे, टू स्कोर 75% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स. अगर उसके 15 मार्क्स और आ जाते तो मैक्सिमम मार्क्स का उसे कितने मिलता, 75% मिलता. फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स. यहाँ हमने क्या फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमम मार्क्स. लेटे मैक्सिमम मार्क्स इक्वल टू एक्स. हमने मैक्सिमम मार्क्स ले लिए उसके एक्स. कैंडिडेट स्कोरिंग कैंडिडेट का जो स्कोर है वो कितना है, 360 मार्क्स. एंड अगर हम 50 मार्क्स और ऐड कर दें तो जो मैक्सिमम का कितने परसेंट हो जाएगा, 75%. इफ वी एड 360 प्लस 15 दैट इज 375. जो 375 मार्क्स है वो क्या है, मैक्सिमम मार्क्स का 75%. मैक्सिमम मार्क्स एक्स है, उसका 75% इक्वल टू 375. एक्स मल्टीप्लाई 75 बाई 100 equal to 375 and x equal to 375 multiply with 100 divided by 75. Then 25 3 25 4 and 7 by 3 1 3 1 3 2 6 and 5. 125 4 ja 125 4 ja equal to, and that is 125 to multiply with 4, that is 500 equal to 500. X equal to 500. What is x? X is maximum marks. Then maximum marks equal to maximum marks equal to 500. जो 500 है वो क्या है, maximum marks. Okay, this is exercise 7.1. So with the help of this video you complete your exercise 7.1.